Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 9th of September 2023. From today's newspaper, we'll be discussing about the three important topics, that is about the WTO dispute resolution. Second is repatriation of Indian children. I'm so excited that finally this concern is being raised about the repatriation of Indian children. As I have seen a recent movie, the movie was Mrs. Chatterjee versus Norway, and the actress was Rani Mukherjee. So when I saw that movie, I was completely shocked, and I'm so glad that finally this concern is raised on the platform like the Hindu newspaper, and there is a mention of that movie as well in this editorial. So we'll be discussing about it. And then the third topic is the police reform. This is not exactly about the police reform, it is more related to the change of the new three criminal laws, that is the new three laws which are the criminal laws. Okay. So before we start our discussion in detail, this is our channel IS Cafe. If you're really liking our videos, if you're really liking our initiative, please do subscribe it, like and share. Now, coming to the first topic, that is the WTO and the dispute resolution. Now, you'll be talking that why I am asking you all to know about the WTO. Is there any editorial section given to the WTO in the today's newspaper? See, just on the first page of your today's newspaper, there is a small news which talks about the India and the US has some meeting over there, and in that they have talked about many things. So this is not that important. But in that meeting, they also talked about the broad more cooperation with respect to the WTO dispute resolution. And as we know, this is very important part of your GS paper 3 economics. In this section, we study about the economic organization and international organization in the international thing. But in this GS paper 3, we also read about the economic organizations, and one is your WTO, that is the World Trade Organization. So before we understand how actually this WTO helps in the dispute resolution mechanism between the different countries, we are here to make you understand the basic concept of WTO. What is this WTO? What is the structure of this WTO? How it is functioning? Okay, how the governance of the WTO is actually happening over here. Correct? So let us start the WTO. So WTO stands for the World Trade Organization. And with the name itself, with the full form itself, it is pretty much clear that somehow it is related to the trade. So WTO is the only international organization dealing with the rules of trade between the nations. I repeat that in the whole world, it is the only organization which is dealing with respect to the rules and regulations of the trade between the nations. As today's world is a globalized world, every single country is involved in the trade with other countries. Either they are importing the goods or they're exporting the goods or the services, whatever. So there is some kind of trade going on between different countries. So if we talk about the trade, then there must be dispute as well. अगर आप छोटी सी शॉप भी खोलते हो, छोटा सा बिजनेस भी करते हो, तो डिस्प्यूट तो होगा ही ना. मतलब जब एक से ज्यादा लोग हैं तो भाई बर्तन तो बचने वाले हैं. So same thing here, that if dispute is there, if trade is there, then dispute will always be there, right? So the WTO is the only organization which is basically making certain rules and regulations to solve this dispute between the nations. Okay, so the WTO has 164 members, which also include the European Union and 23 observer governments like Iran, Iraq, Bhutan and Libya. जब भी आप ऐसी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हो,
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उनके जो मेंबर्स है वो कौन कौन है। लाइक डब्ल्यूटीओ में बहुत ज्यादा यू डोंट हैव टू डू दैट, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट द आसियान कंट्रीज, द सार्क कंट्रीज, राइट। बट यहाँ पे ये आपको पक्का याद रखना है कि क्या इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है या नहीं है, राइट। So in this, with respect to India, you must remember that is India part of WTO or not. So we are clear about what is WTO. Now let us come to the goals or the objectives of this WTO, that is World Trade Organization. The WTO's global system lowers the trade barrier through negotiation and operates under the principle of non-discrimination. तो जो WTO है पूरे ग्लोबल सिस्टम पे, एक ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड में जितने भी बैरियर्स है उसको कम करने की कोशिश करता है, ट्रेड को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। और डब्ल्यूटीओ जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल। तो अब जब ये इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस the initiative of the WTO, where WTO is basically protecting or reducing the barriers in the trade, आपका जो कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का वो कम होगा। Why? Because import used in the production are cheaper. It reduces the price of finished goods and services, more choice, and ultimately a lower cost of living, which is helpful for every country. WTO system deal with these in two ways. अब ये सब करने के लिए WTO दो रास्ते चुनता है। पहला, या तो आप बातचीत करके सल्टारा कर लो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ये है, चलो हम इस पे ये करेंगे, हमारी ये प्रॉब्लम है, आप इसमें नेगोशिएट करो। तो एक होता है कि आप बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके आप उसको सही कर रहे हो, दैट इज वन इज बाय दी टॉकिंग। Countries negotiate the rules that are acceptable to the all. यानी जितनी भी कंट्रीज जहां पे जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो उन रूल्स रेगुलेशन के लिए नेगोशिएशन पे आ जाता है जो बाकी सारी कंट्रीज जिसके साथ सहमत है। तो सहमति, बातचीत, कम्युनिकेशन जो है डब्ल्यूटीओ जो पहला रास्ता वो अपनाता है। The other is setting the dispute about whether countries are playing by those agreed rules. तो दूसरा obviously rules की तरफ जाएगा that WTO क्या क्या कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकता है, इट कैन कट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली। जी हाँ। So what exactly the WTO is doing? WTO is somehow promoting the good governance or encouraging the good governance without the corruption. Transparency is there. The shared information and the knowledge levels that playing the field. It is basically reducing the arbitrariness and opportunities for corruption. That is what the sole objective of the good governance. So the WTO can help the countries develop. The underlying WTO's trading system is the fact that more open trade can boost economic growth and help countries to develop. जब भी देखो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है आपकी, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है कैसे, जब ट्रेड हो रहा है, ट्रेड कैसे अच्छा होगा जब आप उसमें जो बैरियर्स है, जो सैंक्शन है, वो एक रैशनल रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंट्री को टारगेट करो। तो जब ये सब हो रहा है, डब्ल्यूटीओ जब इसको फैसिलिटेट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिलिटेट कर रहा है, विच विल हेल्प कंट्री टू डेवलप। So in that sense, commerce and development are good for each other. In addition, WTO agreements are full of provisions that take into account the interests of developing countries. The WTO can give the weak a stronger voice. जो weak countries होती है, जो developing countries होती है, यहाँ पे उनको बहुत अच्छा जो है मौका मिल सकता है developing countries। क्लियर? अब WTO जो है उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है उसको हम समझते दैट हाउ WTO was formed. Give me a second. So if we talk about the establishment of WTO, थोड़ा सा पास्ट में चल के देखते हैं। पास्ट इतना भी बुरा नहीं होता, राइट? So when we talk about the past or the historical sense, याद करो वो सिल्क रूट का जमाना जब सिल्क रोड थी, तो उस वक्त आपके पास जब सिल्क रोड वाली जो शुरुआती दिन थे
वहां पे एक अग्रीमेंट बना, दैट इज गेट। अग्रीमेंट तो नहीं कहेंगे, और ग्रुपिंग बोल सकते हो, विच स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एंड द बर्थ ऑफ WTO, ट्रेड हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। 1994 में आपकी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। देखो वर्ल्ड मैप क्लियर है ना, तो ये वर्ड इजी लगेंगे, ब्रेटन। ठीक है, 1994 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। ये क्यों हुई, आप इसको चलो थोड़ा और देखेंगे। सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और फिर आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, तब सारे कंट्रीज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, ट्रेड के हालात बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तो इन सब से फाइट करने के लिए सभी कंट्रीज ने बोला कि वी शुड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी ग्रुपिंग जो इन फ्यूचर हमको इस कागा इस कंडीशन में फिर से नहीं लेके आए। एक सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होनी चाहिए जो इन सबको कंट्रोल करे। तो फाइनली यहाँ पे 1994 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के चलते हुए आपका गेट जो है वो बनता है। ठीक है, दैट इज द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और उसी के साथ दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो आती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। So this Bretton Woods Conference delegates the recommended establishment of the complementary institution to be known as ITO, that is International Trade Organization. तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में ये भी रिकमेंडेशन दी गई थी कि हमको एक ITO बनाना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डील करेगा। लेकिन यूएस जो है उसको साइन करने से बेसिकली उस टाइम मना कर रहा था। तो 1948 में यूएस जो है मना कर रहा था। 1948 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट कंक्लूडेड अ ड्राफ्ट चार्टर फॉर द आईटीओ, जिसको हवाना चार्टर बोला गया, राइट। देन जब यूएस क्या कर रहा था कि भाई आईटीओ को साइन करने से मना कर रहा था, तो बाकी कंट्रीज ने सोचा कि जब तक आईटीओ नहीं बनता है, या फिर जब तक कि यूएस जो है कह रहा था कि मैं करूं या नहीं करूं, ये जो उसका टाइम चल रहा है, तब तक हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं जो कि गेट कहलाएगा, जनरल क्या अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। So it was signed by 23 countries. I hope you are understanding the point. What I want to say is, initially आपके पास एक कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी कब, एक 1994 में, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन को देखते हुए, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज साइंड एज द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और बाद में यहाँ पे दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी बने, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज देयर एंड वर्ल्ड बैंक वाज देयर। So with respect to this, all the countries were thinking to develop an organization, an international organization, which was that time termed as International Trade Organization. But US was somehow showing a confusion over it that I should sign it or not sign it. So meanwhile, बाकी countries ने क्या किया, गेट जो है उसको साइन किया, दैट इज जनरल agreement on tariff and trade. It was signed by 23 countries on Geneva in 1947. क्या 1947 से किसी को कुछ याद आ रहा है? क्या 1947 एक मेमोरेबल ईयर है इंडिया के लिए? क्या इस 1947 के थ्रू हम हमेशा याद रख सकते हैं कि यहाँ पे गैट का फॉर्मेशन भी हुआ? ठीक है, तो ये कब आया? 1 जनवरी 1947 में। और 1948 में के जो पर्पस थे वो बताया गया, दैट टू फेज आउट द यूज ऑफ इंपोर्ट कोटास एंड टू रिड्यूस द टैरिफ ऑन मर्चेंडाइज ट्रेड। कि अगर आप कोई कैपिटल रिलेटेड यानी मर्चेंडाइज ट्रेड कर रहे हो, तो उस पर टैरिफ को हमको कम करना पड़ेगा, तभी जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजिली हो पाएंगे। तो गेट उस वक्त की इकलौती मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन या इंस्ट्रूमेंट बन गई जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड को देख रही थी फ्रॉम 1948 से लेके जब तक 1995 में WTO एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो बेसिकली फ्रॉम 1948 1947 के अंदर, देखो डेट्स को समझो,
1947 के अंदर साइन हुआ, 1948 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ, तब से लेके 1995 में जब WTO ने इसको रिप्लेस किया, इट वाज द ओनली multilateral instrument which was dealing with the international trade. So despite its institutional deficiencies, the GATT managed to function as a de facto multilateral trade negotiator. ठीक है, फिर आता है आपके पास 1994 में उरुग्वे राउंड हुआ था, culminated in the Marrakesh Agreement which ultimately established the WTO. ये याद रखिएगा कि उरुग्वे राउंड था, मार्राकेश एग्रीमेंट साइन हुआ था, करेक्ट। तो दिस वाज अबाउट द कैसे आया। अब WTO ने गैट को रिप्लेस क्यों किया, जब इतनी बढ़िया इंस्टीट्यूशन थी, सब काम कर रही थी आपके पास और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसको WTO को रिप्लेस करने की क्यों जरूरत पड़ी। देखो, जो गैट है ना, वो एक अग्रीमेंट था, it was not a proper institution, it was not having an institutional structure, ठीक है। यहाँ पे इट इज द ओनली सेट ऑफ रूल्स एंड मल्टीलेटरल अग्रीमेंट। द गैट 1947 was terminated and WTO was preserved instead of it, not covered by the regular GATT rules, तो इसलिए उसको रिप्लेस किया गया। अब WTO का जो गवर्नेंस है कि ये काम कैसे कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहले है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो सबसे टॉप लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, द टॉप मोस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, जो हर साल में 2 बार मीटिंग करती है, सॉरी हर 2 साल में एक बार मीटिंग करती है। आई रिपीट, द WTO का सबसे टॉप पे जो स्ट्रक्चर पे आता है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस आता है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, हर 2 साल में एक बार ये मिलती है। जितने भी WTO की मेंबर्स हैं वो एक साथ आते हैं, यहाँ पे अपने जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते, इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। फिर आता है जनरल काउंसिल, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है आपके पास कहाँ पे, जिनेवा के अंदर। Now it is a representative from all the member governments and has authority to act on the behalf of ministerial conference. जनरल काउंसिल होगा यहाँ पे, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू होगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो होगा। अब फाइनली यहाँ से हम सीधा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिप्स के बारे में पढ़ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WTO के अंदर आता है ट्रिप्स, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो आप हम उस पर सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो डिस्प्यूट होता है उसको कैसे सॉल्व करता है WTO, वो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तो ये हो गई थी आपके पास जनरल काउंसिल। It convenes as the dispute settlement body to deal with the dispute of WTO members. Okay. Now, फिर आता है आपके पास appellate body, ये 1995 में स्टैब्लिश हुआ था फॉर द एप्लीकेशन पर्पस। अब न्यूज का कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था। डिस्प्यूट सेटलमेंट में आपके पास क्या होता है, और 2 रास्ते चूज करता है यहाँ पे, 2 से 3। पहला या फिर कंसल्टेशन, दूसरा है एडजुडिकेशन बाय पैनल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल। अब हम आते हैं WTO को, जो एप्लेट बॉडी है उसको अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। So this is about the complete information about the WTO. Now let us have a look with respect to the second topic, that is repatriation of the Indian children. So when I talk about the repatriation of Indian children, इसको एडिटोरियल के पास समझने से पहले जनरल इसका ओवरव्यू जो है हम लेते हैं। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, बट जो सोसाइटल कंडीशन है अभी भी इतनी ज्यादा कूल नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारे सोशल जो नॉर्म्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। So the more persons are getting educated, they are moving towards the high income countries to get a job there and to settle there. लोग अमेरिका जा रहे हैं, लोग कनाडा जा रहे हैं, और भी दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फॉर देयर जॉब। ओके, तो जब वो वहां पे जाते हैं और सेटल होते हैं, तो एक ट्रेंड सामने आ रहा है, विच इज
हाईली कंसर्निंग। एज आई मेंशन दैट मैंने एक मूवी भी देखी है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, सो आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड कि जब वो कंट्रीज में हमारी कंट्री के लोग जाते हैं, या फिर कोई भी कंट्री जो कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, वहां से अगर आप एक हाई इनकम कंट्री में जा रहे हो, तो उनको बहुत ज्यादा पार्शलिटी फील करनी पड़ती है। कैसे? वहां पे अगर कोई बच्चे जो है, अगर किसी छोटे बच्चे का बर्थ वहां पे होता है, तो यूजुअली देयर इज कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द हाई इनकम डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। So what the rules and regulations says of that country is that we will observe you कि as a parent you are capable or not to raise your children. I repeat, what the rules and regulations, I'm talking in general, not particularly pointing out a single country. What the high income countries are saying that we will observe you that are you capable to raise your child or not. If you're not capable, then we will take this child from you because we don't want to ruin the future of the child. We will take them into the foster child care things, और वहां पे हम इनको पढ़ाएंगे, अच्छी जो है परवरिश वगैरह हम देंगे। और फाइनली रिजल्ट क्या होता है? वो चिल्ड्रन, वो चाइल्ड पूरी तरह से डिटैच हो जाता है अपने ओरिजिन से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, और जिस कंट्री में उस पोस्टर चाइल्ड केयर में उसको रखा गया, वहां की उसकी सिटीजनशिप है नहीं, तो वो दोनों तरफ से पिसता है। करेक्ट? तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे राइटर ने कंसर्न जताया, दैट इज चेंज द प्ले बुक, रिपैट्रिएट इंडियन चिल्ड्रन। इस मूवी की मैं बात कर रही हूँ, उसका यहाँ पे जिक्र यहाँ पे राइटर ने किया है, दैट द फॉरेन नेशंस शुड एंगेज इन अ सिंसियर इंजरी ऑफ इंडियन पेरेंट्स, क्लेम्स ऑफ द कल्चरल प्रेजुडाइज एंड अनफेयर ट्रायल्स इन देयर चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कि प्रियदर्शनी पाटिल, धारा शाह, Sagarika Chakraborty are among the several expatriate Indian mothers who have been or were separated from their children by the host state in a gross violation of human rights that affect the well-being of mothers, their children, and their families. तो ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ इमोशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, अगर किसी माँ से अगर आप उसका बच्चा छीन रहे हो, तो वो मेंटली टॉर्चर हो जाएगी, उनकी कंडीशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बुरी। So after her children were confiscated by Australian Child Services Authorities and the family's plea to have children repatriated to India fell on the deaf ears, a mother of two was driven to despair. She ended her life. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है राइटर के थ्रू कि जब उनके बच्चे को उनसे छीन लिया गया था, तो कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था, किसी भी कानून के सामने ये जो लॉ है वो सब फेल हो रहे थे। अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड। So, according to the news reports, the Australian Child Protection Authorities had been called in by doctors against whom the mother had filed a complaint, but उसका भी कोई खास यहाँ पे कुछ किया नहीं गया। जर्मनी में Taha, along with her software engineer husband, have been separated from their baby girl, जो कि अभी 2.5 साल की है, was sent to the permanent foster care by Germany's child welfare agency after the parents were accused of having injured the child. ये एक और केस है। जर्मनी में शाह और उनके हस्बैंड, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनसे उनकी 2.5 साल की बच्ची छीन ली गई और जो परमानेंट फोस्टर केयर होता है वहां पे भेज दिया गया। ये अक्यूजेशन लगा के कि आपके बच्चों को चोट लग गई है, आप उस बच्चों को पालने लायक नहीं। So despite evidence to the contrary supported by the expert medical report, neither the parents nor the doctors accusing them of injury were cross-examined. और इतनी खतरनाक अक्यूजेशन लगाने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ कि क्या ये इंजरी सच में हुई भी थी या नहीं हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी बंद हो गए। कोर्ट ऑल्सो इग्नोर्ड द डिसीजन। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने आपको इंटरवेन किया, लेकिन अभी जर्मनी इज येट टू रिलेंट इट। इसी तरह से बहुत सारी केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे
that a young family moves to work in a high income country, the parents are accused of abusing their children और उनसे जो बच्चे हैं वो छीन लिए जाते हैं. Actually, there are data or certain editorials which also say that ये high income countries में no one अभी जो trend है that they don't want to have a children, they want to adopt the children, and कहीं ना कहीं they are doing it for this purpose that they say that you are not capable of raising the children and आप उसको foster group पे रख रहे हो, फिर ultimately या तो किसी को adoption के लिए वो बच्चा दे दिया जाता है और for any XYZ reason. Correct. तो यहाँ पे राइटर का क्या पॉइंट है दैट दे आर सब्जेक्ट टू ट्रायल दैट इज वेरी वन साइडेड. पेरेंटल कस्टडी जो है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है. चाइल्ड और उसकी जो सिबलिंग्स उनको फोस्टर केयर में रखा जाता है. पेरेंट्स से उनकी फैमिली से उनका नाता सब छूट जाता है. और उसी के साथ में जो चाइल्ड है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है. Typically, these children are placed in the local foster care. Consequently, जो उनकी ओरिजिनल कंट्री है उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं रहता है. जिस कंट्री में अभी वो है वहां पे वो एलिनेट होते हैं क्योंकि वहां से उनके पास सिटीजनशिप नहीं होती है. तो हर तरह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. तो एज अ ह्यूमन राइट ह्यूमैनिक थिंग आप क्या कर सकते हो, उन बच्चों को आप छोड़ दीजिए. दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन. यहाँ पे मेंशन किया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में. बहुत ही it was very sad moment for me to watch that movie. I recommend all of you to watch this movie ताकि आपको इस टॉपिक का एक सीरियस कंसर्न जो है समझ आएगा. इसमें एक बंगाली फैमिली, इंडियन बंगाली फैमिली जो है वहाँ पे सेटल होती है नॉर्वे के अंदर. और उस नॉर्वे में क्या किया जाता है कि उनके जो छोटे बच्चे होते हैं तो देर इज अ कस्टम, देर इज अ ट्रेडिशन इन द बंगाल कि आप अपने बच्चे को हाथ से खाना खिलाते हो, राइट. So the government of the Norway, they have sent some people in the house of Rani Mukherjee in that movie to observe that are they capable of raising their children or not. And looking at the situation कि वो अपने बच्चे को हाथ से खाना खिला रही है या फिर चम्मच से नहीं खाना खिला रही है, मेनी अदर द बेसिक थिंग्स जो कि इंडिया के कल्चर में आता है, उन सबको देखते हुए एक बड़ी सी लिस्ट बनाई गई कि नो यू आर नॉट केपेबल टू रेज योर ओन चाइल्ड. आप बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं रख रहे हो. प्लस उनका जो बड़ा बच्चा होता है जब वो स्कूल जा रहा होता है तो कभी उनके होमवर्क की कॉपी मिस हो जाती है, नोटबुक मिस हो जाती है. तो उनकी गवर्नमेंट ये ब्लेम करती है कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. जबकि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो द एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है. तो ये सब देखते हुए उनके बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं बिना बताए. इट वाज लाइक अ किडनैपिंग. उसके बाद जो पूरा भी लीगल प्रोसेस हुआ था वो पूरा वन साइडेड था. जो लॉयर है, सरकारी जो लॉयर है वो भी उनकी गवर्नमेंट का होता है. प्राइवेट लॉयर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है. जो भी वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं सब वन साइडेड होते हैं. सारे डिसीजन उनके होते हैं. क्लियर. और फिर वहां पे उनको एक रिच जो फैमिली है उनको बड़े बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया गया था. अल्टीमेटली दैट चाइल्ड स्टार्टेड द चिल्ड्रन स्टार्टेड फॉरगेटिंग देयर फैमिली, राइट. तो तब जाके ये केस इंडियन गवर्नमेंट तक आया था, उसमें जो इनिशिएटिव है वो लिया गया. तो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज समथिंग on overall the criminal law will add the big picture while some of the proposed changes are progressive and larger issues about the need for the police reforms taken up in its entirety. तो यहाँ पे जो फोकस है पुलिस रिफॉर्म के बारे में तो है ही, बट इसको लिंक किया गया है कि अभी जो नए लॉ आए हैं दैट इज थ्री न्यू क्रिमिनल लॉ जो है उससे ये रिलेटेड है. ठीक है. तो दीज आर रिलेटेड टू द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज. तो जब भी when you talk about the law, what exactly you think कि क्या ये लॉ फेयर है, सबके लिए बराबर है, क्या इस लॉ से किसी को टाइमली जस्टिस मिल पाएगा, राइट. तो ये सब चीजें आप सोचते हो लॉ को लेते हो तब. तो यहाँ पे तीन लॉ है आपके पास. एक पुराने लॉ की बात करेंगे और हम एक नए जो लॉ है उनके बारे में बात करेंगे. So the old law was the number one is your Indian Penal Code, the number two was your Criminal Procedure Code और number three है आपके पास क्या, the Indian Evidence Act. ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं. आईपीसी दैट इज इंडियन पिनल कोड ये डिफाइन करता है कि क्या चीज क्राइम है. कि अगर
मैंने अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं आपको गालियां बोलने लग जाऊं, तो क्या वो क्राइम है कि नहीं है? तो वो लिखा होता है आईपीसी में। अगर वो क्राइम है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, आईपीसी जो है उसके अंदर हो जाएगा। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आपके पास प्रोसेस लिखा होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको किस तरह से बेल मिलेगा, जेल कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, और एविडेंसेस अबाउट द एविडेंस। तो इनको कन्वर्ट करके तीन जो नए लॉ है वो लेके आया, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता, इस तरह से तीन जो है नए जो लॉ है वो लाए गए हैं। तो यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे इसके कि क्या ये अच्छे हैं, आई मीन जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, so our focus is that why we are changing these old laws towards the new laws. Hmm, just imagine your grandfather. अगर आप उनसे पूछोगे कि what crime a man can do, ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेंगे? Distraction towards other women, that is extramarital affair, या it's, और वो प्रीजुडाइज वे में बोलेंगे क्या वुमेन कर सकती है? नहीं नहीं। दे माइट से दैट चोरी हो सकती है, दे माइट से दैट आपके कोई गुंडे आके आपको मार सकते हैं। बट इफ यू टॉक टू योर फादर, दे विल गिव यू टोटली डिफरेंट डेफिनेशन कि नहीं, आपको कोई रेल ट्रेन से धक्का जो है दे सकता है, राइट, आपकी कोई गाड़ी चुरा के लेके जा सकता है। और अगर हम हमारी जनरेशन से पूछे तो साइबर क्राइम हो सकता है, नो, हमको वीडियोस फोन में नहीं रखने चाहिए, न्यूड फोटोज नहीं रखनी चाहिए, लीक हो जाती है। तो आपको समझ आ रहा है व्हाट आई वांट टू से? विद द चेंज ऑफ टाइम द नेचर ऑफ क्राइम हैज चेंज। क्राइम करने का तरीका बदल रहा है। तो क्या उस क्राइम के लिए आप पुराने कानून को यूज कर सकते हो? नहीं। So this is the reason that we need the old laws to be converted into the new. Now you will say तो amend कर दो भाई। Amend will not that work because it's a बहुत जगह problem है। So instead we cannot change the principle of the laws by amending, right? So we can go for what? The new laws. Then there are people who say that नाम में दिक्कत है इसके। सर नाम हिंदी में है ही नहीं, हिंदी पोजीशन की बात कहाँ से है? यहाँ पे सारे नाम संस्कृत में है, कंटेंट इंग्लिश में है। There is nothing written in Hindi. So we are not imposing anything in the Hindi. So now we'll be talking that IPC जो है उस पर कुछ सेक्शंस को रिमूव किया गया है और कुछ नए सेक्शंस को ऐड किया गया है। रिमूवल की बात करें तो जैसे सेडिशन आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। सेडिशन हटाया गया है बट कुछ कुछ उसी तरीके का जो है सेक्शन फिर इसमें डाल दिया गया है। अटेम्प्ट टू कमिट सोसाइटी को हटाया गया है, एडल्ट्री को यहाँ पे हटाया गया है। ऐड क्या किया गया है कि स्नैचिंग, टेररिज्म रिलेटेड चीजें, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है। तो इस यहाँ पे इनके बारे में ये सब कुछ जो है, यही सब कुछ इस जो एडिटोरियल में लिखा हुआ है। तो राइटर बोलना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी के अंदर जो चेंज हुए हैं आपको उसको लाना जरूरी है, दैट यू नीड अ रिफॉर्म इन पुलिस कस्टडी। ओके, so thank you so much. This is it for today. If you're really liking our video, please do subscribe our channel, like and share. Thank you.